अच्छा, so the first one, वो कह रहा है diagram shows some part of the changes of state. Which statement is correct? ठीक है, तो solid, liquid and gases, there's a change of state happening. पहले तो मुझे quickly ना name these changes of state. ये one का क्या नाम है? Melting, ये one is melting and this is automatically opposite क्या होगा? freezing, Freezing, ठीक है. freezing. This one C is Liquid to gas would be boiling, and ठीक है. then gas to liquid would be condensation, And five. and it would be, I think, sublimation. ठीक है. So although the change is not shown on the diagram, a gas can change directly to a solid. Can a gas change directly to a solid? No. It can, मतलब it can change directly to a solid as well. मतलब Yeah, sublimation का yeah, opposite, sublimation का opposite भी होता है. yeah. अच्छा, that's Deposition. हाँ, that's known as deposition. ठीक है. अच्छा, कोई example दे दो ऐसे sublimation का. Which substances sublime? कोई idea, कोई substance जो sublime करता है? Yes or no? Zinc oxide. हाँ. Zinc oxide, I think. नहीं, sublime नहीं, not zinc oxide. There are two substances which you should know. एक iodine है. ठीक है, iodine जो है ना, it's a blue black substance and उसको जरा सा भी heat करो ना, it quickly turns into gas and forms a purple vapor form कर देता है. ठीक है. अच्छा, then there is another one which should be known, and that is AlCl3, aluminum chloride. ठीक है. AlCl3 जो है ना, that's also white solid and it quickly changes into, if you heat it, it changes into white fumes. ठीक है. You must remember these two examples. Zinc oxide, I'm not sure. वो Google करना पड़ेगा, but I don't think zinc oxide sublimed. ठीक है. I've never heard of it. Okay, Uh, okay. लेकिन वो चेक करके मैं बता भी दूंगा. These two compounds, ठीक है, you must know these two compounds. चलो, which statement is correct? Although the change is not shown, A जो है, A is possible. उसने कहा है कि a gas can change, तो A ही correct है. ठीक है. I mean, it looks correct. लेकिन वो confirm कर लेते हैं B, C and D से. The changes 1 and 3 involves particles moving closer together. What's wrong with B? One, are the particles moving closer together? Particles moving far away from them. Because solids के अंदर they're tightly packed, liquids के अंदर they're loosely packed. Yes. तो गलत है. The changes 2 and 4 involve particles moving further apart. Two other particles moving further apart. Yes. But in 4 are the particles moving further apart. No, they're moving close together in four. ठीक है, तो इसलिए ना that's ये C में एक part गलत है. ठीक है. The changes 3, 4 and 5 all involve the release of energy. तो 3, 4, 5. 3, is it releasing energy? Uh, no. Gas to liquid. Yes, it is. It is. Yes. ठीक है. Liquids के पास कम there's less energy in liquids. Yeah. So if you have less energy in liquids, तो वो obviously gas से lose करेंगे ना, gas particles. अच्छा, 3 तो सही है. 4, is it losing Four. It energy? isn't. What about 5? Yes, it is. नहीं, सही है, गलत है. It is gaining energy. ठीक है. This one is gaining energy, so that's not correct. ठीक है. अच्छा, next one So आ A जाते would हैं. be correct. चलो ठीक है. Next one, there are two gases. एक side पे there's NH3. ठीक है. Ammonia. Remember this from now on. ये याद रखना है. Hydrogen chloride gas is HCl. Uh, so you have two gases. So the diagram shows the apparatus which is used to compare the rate of diffusion. At which point position did a white deposit of ammonium chloride? ये दोनों react करते हैं and they end up producing. मतलब अभी तो equations नहीं पढ़ी, लेकिन बस वो कह रहा है कि ammonium chloride ये form हो रहा है white solid. Question खाली ये कि where would the white solid be formed?
over here, C, deep. Hmm? C or D. अच्छा, किसने गेस किया सी और डी? मतलब अमोनिया यहाँ से ट्रैवल कर रही Here है I कि found out the MR of NH3 and HCl हाँ, find the MR of NH3. ठीक है, let me open the would be third. 17, So ठीक है, this is 17. What about this? 36.5, So which one is faster? 17 NH3. So it's going to travel a lot larger distance. So Yeah, D. so they're going to meet at D. As the next one is similar, and like in this case, the two gases are different. This is ethylamine and this is HCl. So question वही है exactly, except कि now the substances that are reacting are different. तो इनका जरा पहले बताओ ना कि where would they meet? और फिर से वही white solid form हो रहा है. A. एक क्या है MRs क्या है? Oh, sorry, just a second. अच्छा, this is NH2 actually. इसको सही कर लेना. Rafi, have you found this out? So just a second. $45 for ethylamine and then HCl for 36.5. As a 45, just let me check. 45 need the two carbons. The calculator सामने कर लेते हैं. Two carbons is 1 second. अच्छा, two carbons is 12 times 2 plus 14. तो हाँ ठीक है. That's fine. So it's 45. So where would they meet? They would meet at A. This is 45, so they would D is slower, ठीक है? So it's going to travel a lesser distance. They would meet at A. ये ज़्यादा distance travel करेगा, ठीक है? So next one. 1 second, let me. As a next one. Second, no. As the next one is when drops of bromine are placed on a table at one side of the room. Uh, so drops of bromine are being placed. So the smell of bromine can be eventually be detected at the other side of the room. So what is not part of the explanation of this after evaporation? So what is not part of the explanation? Bromine को room के एक side पे रखा है. ठीक है. For example, bromine particles, liquid bromine have been placed. Liquid है, ठीक है. Okay, let's put. अच्छा, ये liquid particles हैं. And the smell of bromine can be it could be smelled at the other side of the room. So क्या क्या processes involved होंगे? That these particles over here, what would be the first thing that would happen? They will evaporate and mix with air. ठीक है, so they would evaporate and they're going to mix. So that's the first part, ठीक है. And then what happens after evaporation? The particles have evaporated. What is the process that is called where the particles move from a region of higher concentration to a region of lower concentration? Condensation takes place. Condense. Diffusion. Yeah, diffusion.
ठीक है, diffusion happens क्योंकि particles they move randomly in all directions and they spread from a region of higher concentration to a region of lower concentration. तो दूसरे कोने में भी कोई बंदा बैठा होता है ना, उसको भी स्मेल आ जाती है. अच्छा, so वो कह रहे हैं कि after evaporation, what is not part of the explanation? Javier, should I send you the meeting ID? यो पिछली वाली ज्वाइन कर लो आप. सर मैंने D. ठीक है, डी इज क्योंकि लिक्विड और मतलब सॉलिड तो कहीं पे भी नहीं है, या तो वो गैस फॉर्म हो रहा है इवेपोरेट होके, लिक्विड था. सो ठीक है, सो वाइब्रेट साइड टू साइड जो होता है दैट हैपेंस इन सॉलिड्स, सो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ये जस्ट 1 सेकंड, लेट मी. So next one is which process provides the best evidence of ये मैं खुद ही कर लेता हूँ, particle theory of matter. So that is diffusion. Diffusion is the only thing that you study in particle Yes. theory of matter. एक और है Brownian motion है, लेकिन Brownian motion is not in your course. Indirectly कुछ questions आ जाते हैं Brownian motion के ऊपर भी. तो मैं थोड़ा सा वो explain कर दूँ. What is any idea what Brownian motion is? No. अच्छा, सिंपली ब्राउनियन मोशन ये कि कोई साइंटिस्ट था, उससे ना ही वाज स्टडीइंग डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं. तो ब्राउनियन मोशन इज सिमिलर टू डिफ्यूजन. ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, बस नाम का थोड़ा सा फर्क है और थोड़ा सा स्लाइटली एक एडिशन है. उसने नोटिस ये किया कि द डस्ट पार्टिकल्स, इमेजिन दीज आर डस्ट पार्टिकल्स, तो उसने नोटिस किया कि द डस्ट पार्टिकल्स आर नॉट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ही एक्सपेक्टेड देम टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट दे वर ट्रैवलिंग हैपहैजर्डली. कभी किसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर किसी और डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर किसी और डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड सो ऑन. तो they weren't traveling in a straight path. उसकी रीजन ये थी, ठीक है, द रीजन फॉर दैट इज कि बीच में ना ढेर सारे एयर मॉलिक्यूल्स थे which he couldn't see. ठीक है, and because of those air molecules the particles were constantly bumping into them, which is why they were never able to travel in a straight line. ठीक है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल आ गया तो वो कोलाइड करके तो बात हुई है. there's nothing different in Brownian motion. It's the same thing कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं haphazard. लेकिन एयर के अंदर जब भी पार्टिकल्स होते हैं ना, they keep changing directions, and the reason is because they keep colliding with the air molecules. ठीक है, so that's Brownian motion. कुछ questions के ऊपर indirectly are asked. अच्छा, let's move to the next part, which is this one. You have 4 identical balloons and they're filled with gases. वो कह रहा है which gases gradually diffuse out of the balloons. So the gases are coming out of the balloons. You're being asked which pair of balloons will deflate at the same rate. किन में से गैस सेम रेट पे निकलेगी? तो इसमें देखना क्या है? इसमें देखना ये कि इनमें से कौन सा बलून है जिसकी MR जो होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी. तो क्विकली ट्राई एंड कैलकुलेट द MRs. कि NH3 की MR कितनी है? You've already found this. अभी किया था. 17. ठीक है, so NH3 is 17. फिर इसकी कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड 44. ठीक है, so carbon dioxide is 44. C2H4 is 12 plus 12 plus 4 hydrogen. 28. ठीक है, that is 28. और last one, nitrogen.
28. ठीक है, that's also 28. The same rate RNS. ठीक है, that's your answer. अच्छा, अगला वाला quickly, which statement explains why the gases propane and carbon dioxide diffuse at the same rate? क्योंकि उनकी mass same है. वो calculate भी कर लेना. They have, but दोनों की mass अगर calculate करोगे, it's going to come out to be 44. Yes, it is. ठीक है. अच्छा, next one is a drop. ये फिर से वही है. ये वाला क्वेश्चन आ गया जो शायद हमने कल कर लिया था. अच्छा, this one. The question is कि air is being cooled and he's saying the first substance that actually condenses is water. If the temperature is lower further, तो what is the next substance to condense? तो इन सारों में से जो ऊपर substance दिए हुए इनमें से which one is going to condense first? Higher boiling point पहले condense करता है या lower boiling point when you're cooling things? Low. नहीं, remember this. People get confused with this. ठीक है. Remember, it's always the higher boiling point. जब आप cool कर रहे हो ना किसी चीज को, higher boiling point condenses first. ठीक है, मतलब for example, इस तरह सोच लिया करो कि there's a number line. ठीक है, so water, let's say 100 पे, that's the boiling point. So when would water condense? Okay, when the temperature, for example, it was 101 degrees centigrade and now it has become 99 degrees centigrade, so it would condense around 100. ठीक है, तो आप उस साइड से नीचे आ रहे हो ना. कूल डाउन करने का क्या मतलब है? आप हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ आ रहे हो, तो वाटर वुड कंडेंस फर्स्ट. अब इन सारों में से नेक्स्ट कौन सा किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट जवेरिया? ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी -78. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब यहाँ पे -70 भी हो गए तो इट वुड बी अ गैस. माइनस में हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन ये होती है कि द स्मॉलर नंबर इज एक्चुअली द बिगर नंबर. ठीक है, माइनस में. और जब वो -80 पे पहुंचेगा इट वुड कंडेंस. ठीक है, 78 क्रॉस करेगा, 78 पे इट वुड स्टार्ट कंडेंसिंग. और फिर बाकी जो है ना, वो तो और भी नीचे जाके आएंगे, उसको तो और कूल डाउन करना पड़ेगा. टेम्परेचर हैज टू बी डिक्रीज फर्दर, देन दे गोइंग टू कंडेंस. तो ये बात याद रखना, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. वैसे ये 1 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है, फजूल के मार्क्स लूज कर जाओगे. रिमेंबर, इट्स ऑलवेज द हायर बॉइलिंग पॉइंट. व्हेन यू कूलिंग थिंग्स, हायर बॉइलिंग पॉइंट चीजें दे कंडेंस फर्स्ट. Sir, Yes. isn't -198 a higher one because it's a bigger number? नहीं, ये फिर से उसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो. वैल्यू क्या है माइनस में? मुझे तो आपके -2 बड़ी वैल्यू है या -5 बड़ी वैल्यू है? -2. तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है ना माइनस में, दैट्स एक्चुअली द बिगर वैल्यू. Okay. ठीक है, राफे क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ना, आउट ऑफ दीज 4, इट्स दिस वन. ठीक है, Right. एक सेकेंड में. अच्छा, नेक्स्ट वन. What correctly describes the molecules of a very dilute sugar solution at room temperature? So remember, he's talking about a very dilute sugar solution. और मैं दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पे क्विकली. सो दिस इज योर बीकर. और हमने ड्रॉ क्या करना है? डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन. मुझे पहले बताओ कि व्हेन यू से डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन, शुगर ज्यादा होगी कम होगी? पानी ज्यादा होगा कम होगा?
क्या होगा, composition क्या होगी? The sugar molecules would be lesser. So let's say these are sugar molecules. And water molecules would be a lot more. ठीक है, तो आपका पूरा, तो कौन close together है? ठीक है, water molecules are Water. close to each other. The sugar molecules are, they're far from each other. तो and are they both moving? Solution के अंदर क्या होता है? Movement क्या होती है? मतलब solution कौन सी state होती है? Liquid state ही होती है ना? Yes. तो liquid के अंदर they're all moving randomly, not freely in all directions, but they are slipping and sliding past each other. Yes. So the sugar molecules are going to be widely separated and moving at random. मतलब ये दोनों options ठीक है, इधर तक तो सही है. And water molecules would be close together but moving as well. तो B आंसर होगा. ठीक है, क्लियर है ये? Rafid Javier, is this clear? Yes or no? Yes. So B would be the answer. हाँ, for the previous, ठीक है, for the previous Yes. one it's B. अच्छा ये भी चीज ना, a lot of people also get confused with this, कि उसने कहा कि there's a substance X and it's present in solid, liquid and gaseous state. Imagine करो कि ये ना water है, ठीक है, water gas मतलब vapor, water, sorry, अच्छा water gas, then there is water in ये क्या solid, ice, and then there's water in liquid state. पहली चीज मुझे बताओ कि state change होने से is the mass different or the same? ठीक है, remember it's always going to be the same, क्योंकि है तो water ही ना, ठीक है, it's still water. तो if it's still water तो mass exactly same होगी, it doesn't really matter. ठीक है, ये make sure this is clear. अच्छा बाकी ये तो गलत हो गया, पहला तो गलत है. Second is energy is released when X changes from, अच्छा mass अगर वैसे अगर mass same है तो ये गैस जो है वो लाइट क्यों होती है? मतलब mass तो exactly same है, मतलब it's water, MR भी सेम है, वाटर लिक्विड सेम है, सॉलिड सेम है. स्टीम को कभी देखा होगा वो ऊपर जा रही होती है, उड़ रही होती है, ठीक है, इट्स नॉट हैवी. मतलब वाटर जो होगा, तो ये बादल अगर जा रहे हैं तो दे फ्लाइंग अराउंड. तो इन तीनों स्टेट्स में डिफरेंट क्या होता है? अगर मास तो सेम है, व्हाट्स डिफरेंट? Boiling point, melting point. नहीं, मैं तो मास के हवाले से कह रहा था कि वो लाइट डेंसिटी डिफरेंट होती है. मतलब Yeah. इधर जो Then होता है ना, वो पार्टिकल्स जो मास होती है ना बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं. सॉलिड के अंदर और भी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो वो फील आपको ज्यादा हैवी होता है, क्योंकि वो एक ही एरिया में दे ऑल कॉन्सेंट्रेटेड. गैस आपको लाइट इसलिए फील होती है कि गैस के पार्टिकल्स आर रियली फार अपार्ट. गैस के अंदर क्या होता है, मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस होती है, ठीक है, तो पार्टिकल्स वही चाह रहे हैं, एक्सेप्ट के दिस वन हैज अ वेरी लो डेंसिटी, इसलिए वो स्टीम जो होती है ना वो बादलों के अंदर उड़ती हुई जा रही होती है, ठीक है, क्योंकि द पार्टिकल्स आर रियली फार अपार्ट. और ये आपको सॉलिड आइस हैवी क्यों फील होती है? क्योंकि इसके पार्टिकल सारे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, दे ऑल कंबाइंड. मास वही होती है, लेकिन दे ऑल, अच्छा दे ऑल कंबाइंड टुगेदर, दे ऑल क्लोज टुगेदर. अच्छा एनीवेज, इसका क्या आंसर है? एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. इज दैट ट्रू? लिक्विड टू सॉलिड, इज एनर्जी रिलीज्ड? क्या yes. होगा? ठीक है, सही है, लिक्विड टू सॉलिड इट्स ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी. फिर लिक्विड खैर कभी भी वाइब्रेट नहीं करते. लिक्विड एक्स इज एट अ हायर टेम्परेचर देन सॉलिड एक्स. वी नॉट श्योर, क्योंकि आइस जो है वो मेल्ट और फ्रीज एक ही टेम्परेचर पे होती है at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो वी नॉट श्योर कि मे बी द टेम्परेचर इज डिफरेंट. सी के बारे में वी नॉट श्योर.
अच्छा नेक्स्ट वन, ये सारी हम स्किप कर रहे हैं. ये वाला क्वेश्चन फिर से, ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वही वाला है, कंफ्यूजन वाला. जल्दी से मुझे बताओ कि which elements are gaseous at -190. एंड बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इट कुड बी, मतलब मेंटली ना, इट कुड कंफ्यूज यू. Javeri, any idea which ones are gaseous? Rafe? Helium, neon, and nitrogen. Helium, neon, and nitrogen. Helium, neon, and nitrogen. Yes, that's true. I think it's argon, nitrogen, and oxygen. चलो ठीक है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं. अच्छा रिमेम्बर, वो कह रहे हैं गैस ना, तो बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ गैस. मतलब मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा इट्स गोइंग टू बी अ गैस. अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होगा इट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड. ठीक है, सो दैट्स द रूल. तो लेट मी राइट डाउन. अब ये -190 है, ठीक है, दिस इज -190. ये मैंने एक मार्क लगा दिया इस पे, -190. बाकियों के टेम्परेचर्स ना अब लिख देते हैं इसके साथ अंदाजन. -196 क्या होगा? वुड इट बी लोअर और हायर देन -190? माइनस इस साइड पे आएगा ना, लोअर होगा. तो दिस इज -196. -183 इज प्रॉब्ली ग्रेटर. ठीक है, उसके बाद -246 वो और भी लोअर होगा. अच्छा, फिर -269 है, वो इवन लोअर. एंड यू हैव -186 जो कि यहाँ पे होगा. अच्छा, रूल क्या था कि इफ, मतलब यहाँ पे क्या रूल था कि बॉइलिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ गैस. इससे स्टार्ट कर लेते हैं, -186 से. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये जो Yes. -190 है वो क्या है? उससे कम टेम्परेचर है ना. तो ये किस स्टेट में होगा? इट्स गोइंग टू बी लिक्विड. जी भैया, बात समझ आइए. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट का क्या रूल है कि बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर का ज्यादा होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ गैस. मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूँ वाटर का. ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बॉइलिंग पॉइंट से कोई भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर किस स्टेट में होगा? इट वुड बी गैसियस, राइट. तो और अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर जो है वो कम होगा, लेट्स से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड में. जो ये बात क्लियर है? मतलब खाली ये वाली बात, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मैं यहाँ पे अप्लाई वही कर रहा हूँ कि आर्गन का सबसे पहले, आर्गन का वो क्या था बॉइलिंग पॉइंट, बल्कि बाकी नंबर लाइन भी छोड़ दो, इग्नोर करो. आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? -186 था ना. और वो किस टेम्परेचर पे कह रहा है कि बताओ स्टेट? -190 पे. तो -190 उससे कम है ना उसके बॉइलिंग पॉइंट से. तो आर्गन किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में. जैसा वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होगा तो इट्स गोइंग टू बी इन लिक्विड स्टेट. तो आर्गन के बॉइलिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर कम होगा तो इट्स गोइंग टू बी इन लिक्विड स्टेट. ये बात समझ आइए. और इस तरह आप बाकियों का भी देख लो. ये -183 किसका था? ऑक्सीजन का था. तो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है अब ऑक्सीजन पे फोकस करो. ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 है. तो -190 उससे कम है ना, तो ऑक्सीजन भी लिक्विड होगा. ठीक है. और ये जो बाकी तीन है ना, -190 इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है. तो -190 पे ये तीनों जो होंगे ना गैसियस स्टेट में होंगे. ये जो भी हैं, क्या है ये? हीलियम, नियॉन एंड नाइट्रोजन. तो ये है. अच्छा, लेट्स मूव ऑन. पिछला क्लियर है राफे? इज दिस क्लियर?
yes or Yes, no? sir. ठीक है. अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ो. uh, ये वाला मुझे बता दो कि the gas jar containing nitrogen dioxide is sealed with a glass plate and is then inverted on top of a gas jar containing air. और इसने पहले बताया हुआ है. अच्छा, he's given you two informations. One of them is कि it's a dark brown gas. The other thing is that it's also denser than air. तो dark brown gas है, ठीक है, नीचे air पड़ी हुई है. अच्छा, बीच में से जब ये when you remove this glass plate तो obviously the gases would mix. So which one of the following correctly describes the colors inside the gas jars after a long मतलब plate remove कर दी है. It has been removed. तो after a long period of time तो क्या end result होगा? Nitrogen gas क्या होगी? Would spread all around. But at the same time it's denser than air. तो उसका क्या मतलब है? How would your gas jars look? Both would be brown. Hmm. अच्छा, both would be brown, ठीक है, वहां तक तो बात ठीक है. लेकिन would one of the gas jars be more brown? Since they're saying after a long period of time, so by then, I think both of them would have the same color. नहीं, but it's denser than air. Denser than air का मतलब है heavier than air. ठीक है, तो eventually end result होगा कि थोड़ी सी nitrogen gas जो है ना, that would be slightly more at the bottom. ठीक है, there would be, क्योंकि light gases जो है ना, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि रिमेंबर कि ये हमने कल भी शायद डिस्कस किया था. एयर की मैंने कहा था द एवरेज मास इज 29. ठीक है, मैंने कहा था इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज 28, ऑक्सीजन इज 32, तो एवरेज जो होती है ना दैट्स अराउंड 29. तो मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि इफ यू हैव अ लाइट गैस लाइटर देन 29 तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है. जैसा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बलून्स के अंदर ना यू ऐड मीथेन हो गया. ठीक है, एक्चुअली most of the balloons these days have methane gas. Methane is 16. इसका कुछ मसला भी होता है कि वो बलून्स को ना आग लग जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मीथेन इज हाईली फ्लेमेबल. अच्छा, एनीवेज, and then there are gases that are heavier than air. For example, carbon dioxide. Carbon dioxide is 44. और ये NO2 भी काफी ज्यादा है, 44 ही होती है. आई थिंक इट्स 16 plus 16 that's 32 plus 14 that's 46 होती है. Sir, I think B is the answer. नहीं, लोअर ये हेवी गैस है ना, उससे कहा था ये डेंस है. Yes. So So there would be more nitrogen gas in the bottom one and there would be lesser nitrogen gas, nitrogen dioxide ये ऊपर वाले में. तो D होगा. Is this clear? The gases will mix. ठीक है, गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मतलब अगर नीचे से पार्टिकल, okay. ठीक है, तो ब्राउन तो दोनों साइड्स होंगी क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. लेकिन बिकॉज इट्स हेवियर तो हेवी गैसेस इवेंचुअली बहुत टाइम के बाद दे वुड काइंड ऑफ सेटल एट द बॉटम. तो नीचे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि वो हेवी है एयर से. ठीक है, जवेरिया, इज दिस क्लियर? Sir, but light gases don't travel faster. So air is lighter than. नहीं नहीं, वो भी है ना, लाइट गैसेस डिफ्यूजन में है कि लाइट गैसेस दे आल्सो ट्रैवल फास्टर. लेकिन मैं तो खाली कह रहा हूँ कि लाइट गैसेस जो होती हैं दे ऑलवेज गो अपवर्ड्स. हेवी गैसेस जो होती हैं ना, जो डेंस होती हैं, Yes. वो नीचे बैठ जाती हैं. मतलब ग्रेविटी उनको पुल कर रही होगी ना क्योंकि दे हैवी. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 44 है ना. तो फिजिक्स में क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना. तो मास अगर ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी. हैवी हैवी चीज के ऊपर वो नीचे की तरफ पुल होगी ग्रेविटी की वजह से. ठीक है. Got it, sir. अच्छा, नेक्स्ट वन, व्हिच प्रॉपर्टी अफेक्ट्स द रेट एट व्हिच इट स्प्रेड्स. तो दो चीजों पे डिपेंड करता है. वन इज द मास, द अदर वन इज टेम्परेचर. ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर कि वो कितनी क्विकली स्प्रेड करती है. ठीक है, दिस हैज ऑलरेडी बीन डन. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. इसमें थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल, शायद आपने पढ़ा हो. He's saying कि this compound is decomposing. ये इधर ये अमोनियम क्लोराइड है. ठीक है,
So this is decomposing, it produces two gases. One is NH3, the other one is HCl. So this is NH3 gas, और ये दोनों gases ना ऊपर की तरफ travel कर रही हैं. पहले तो मुझे बताओ कि litmus paper तक कौन सी gas पहले पहुंचेगी? How would you know that? through MR. ठीक है, you look at the MR and find कि which one has the lower MR. ये पहले कर चुके हैं. HCl की क्या थी MR? H is 1, Cl is 35.5, so this is 36 point. N is 14 और H 3 H लगाओ तो total क्या बनता है? 17. 7 तो कौन पहले पहुंच रहा है उस तक? NH3. अच्छा, NH3 will reach there first. अब इससे अगला पार्ट, कुछ पता है कि NH3 कौन सी टाइप की गैस होती है? थोड़ा लिटमस पेपर में मैं खुद ही ये एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ कि NH3 इज बेस, और वो रेड को ना ब्लू कर देती है लिटमस पेपर को. तो पहला इफेक्ट होगा कि दिस रेड लिटमस पेपर, क्योंकि NH3 पहले पहुंच गई है ना, इट वुड टर्न ब्लू. ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद HCl भी पहुंच जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम. HCl is obviously an acid. Acid क्या करता है लिटमस पेपर को ब्लू से? It changes it to red. तो it turns blue and then it turns red. D होगा, क्योंकि पहले NH3 पहुंच जाएगा, वो ब्लू कर देगा. And after some time it's going to be HCl reaching there and it would हाँ जी, ऑप्शन क्या चीज? ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे साथ एक दूसरे को तो हम उसको ब्लीच कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा. अच्छा, ब्लीच का मतलब वो नहीं होता. मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूं कि ये एसिड और ये बेस है ना, असल में उल्टा हो रहा है काम. वो जब हीट कर रहे हैं ना, तो वो एसिड और बेस, असल में एसिड और बेस रिएक्ट करके, ये दोनों ना, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके यूजुअली ये बनाते हैं जो आपने बात करी कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो ये दोनों यूजुअली रिएक्ट करके ये बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे उसे रिएक्शन में उल्टा लिखा हुआ है कि जो हीट कर रहे हैं ना सॉल्ट को, तो सॉल्ट डिकम्पोज हो रही है और वापस बेस और एसिड वापस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो हाँ ठीक है, बीच में हो सकता है वो मिलके ना, लेकिन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे. अगर वो न्यूट्रलाइज कर देंगे वो तो सॉल्ट बन जाएगा ना, तो वो लिटमस पेपर तक तो पहुंचेगा नहीं. मतलब अगर यहाँ से ना NH3 का पार्टिकल निकले और इधर ही HCl का पार्टिकल है, दोनों मिल गए, तो वो वापस ये सॉल्ट बना देंगे जो कि सॉलिड है, तो वो तो इधर ही रह जाएगा ना. लिटमस पेपर तक कौन पहुंचेगा? या तो NH3 गैस के पार्टिकल्स पहुंचेंगे, HCl गैस के पार्टिकल्स पहुंचेंगे. ठीक है, मतलब क्वेश्चन वो थोड़ा सा समझ लो कि वो उल्टा सॉल्ट को ना डिकम्पोज कर रहा था बाय हीटिंग इट. जब इज दिस क्लियर? यस सर. अच्छा, दूसरी चीज ना, ब्लीच वाली जो बात है, ब्लीच ब्लीच ना पूरी केमिस्ट्री के अंदर ना एक जगह पे यूज हो रहा है. अगर सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है ना, तो ब्लीच जो वर्ड है ना, दैट्स आइदर यूज फॉर Cl2 या फिर SO2. ये मैं वैसे अभी, ये हम आगे जाके ही पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एक क्लोरीन गैस इज अ ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीच का क्या मतलब है? वो उसको वाइट कर देता है. तो मतलब NH3 और HCl का ना ब्लीचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. इट्स दीज टू कंपाउंड्स दैट ब्लीच सब्सटेंसेस, उनको वाइट कर देते हैं. Cl2 जो है स्विमिंग पूल्स वगैरह के अंदर, तो समवन स्विम्स अ लॉट, तो उनके बाल जो होते हैं ना वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरीन. सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पेपर को ब्लीच करता है, पेपर वाइट होता है. इट कम्स फ्रॉम वुड व्हिच इज एक्चुअली ब्राउन इन कलर. तो ये याद रखना, ब्लीच का जो वर्ड है ना, इट्स यूज्ड फॉर दीज टू सब्सटेंसेस ओनली. लेकिन वो बात की बातें हैं, हमने सिर्फ वो डिफ्यूजन तक ही अभी रहना है. अच्छा, दिस वन इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. A test tube containing a liquid as X is placed in a beaker of boiling water. तो टेस्ट ट्यूब है और उसे क्या है कि उसके अंदर ना लिक्विड X पड़ा हुआ है. दिस इज लिक्विड X, और उसको ही इज एडेड इट इनटू बॉइलिंग वाटर. सो देयर इज वाटर दैट्स एट बॉइलिंग वाटर. क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, H2O, और ये X है. ठीक है, वी डोंट नो व्हाट दिस इज. ठीक है, वी हैव नो आइडिया कि ये टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हुआ है.
खैर वो कह रहा है कि जैसे ही उसको बॉइलिंग वाटर में डाला ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, द लिक्विड एक्स स्टार्ट्स टू बॉयल इमीडिएटली। तो वो पूछा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एक्स। पहले तो ये एक्सप्लेन करो, अगर वो इमीडिएटली बॉईल कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स हायर देन 100 और लेसर देन 100? हायर। नहीं, हायर देन 100 होता तो फिर तो वो बॉईल ना करता। मतलब ये फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, वाटर का एग्जांपल ले लो, ठीक है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो बॉईल करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हायर होना चाहिए ना, बल्कि वाटर का मैं वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ ना, तो एक चीज गलत हो गई, वाटर का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, वो तो उसने टेम्परेचर रखा हुआ है। कोई और ले लेते हैं, लेट्स से ये ना मैं खुद से ज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से ये एथेनॉल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर इज एथेनॉल। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 78 होता है, ठीक है, तो लेट्स से उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, दैट्स द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको एकदम से अगर 100 पे लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर? बॉइलिंग पॉइंट से जो भी टेम्परेचर हायर होगा इट्स गोइंग टू बी इन गैसियस Gas. स्टेट। तो इसका मतलब है कि आप उसको गर्म उबलते पानी में डाल रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, सो दैट मींस its own boiling point would probably be lesser than that. Is that clear? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि या तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा या 100 से कम होगा। 100 से ज्यादा होगा ना तो वो बॉईल नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, तो अबव 100 तो वैसे ही गलत है। एग्जैक्टली 100 वी नॉट श्योर, 100 से कम भी हो सकता है तब भी बॉईल करेगा। अब ये बता दो सी एंड डी बिटवीन लोअर एंड क्या होगा उसका? I think it will be D, between room D. temperature and 100. ठीक है, डी। अच्छा, वाई बिटवीन रूम टेम्परेचर? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो किस स्टेट में? और इट्स, अच्छा, इट्स इन लिक्विड स्टेट, तो इसका मतलब है, अच्छा, व्हेन वुड अ टेम्परेचर, व्हेन वुड अ सब्सटेंस बी लिक्विड? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है उसको भी मैं बीच में ले आता हूँ। द रूम टेम्परेचर इज अराउंड 25, ठीक है, तो एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इट्स गोइंग टू बी अ इट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड। तो मैंने तो अज्यूम किया हुआ था ना एथेनॉल, मैंने कहा था एथेनॉल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब 78 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड है, क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर इज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इमीडिएटली बॉईल कर रहा है। व्हाई? बिकॉज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज हायर देन द देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हिच इज 78। तो hence it's going to be above, the boiling point is going to be above 25 and below 100, which is why it's going to be D. Rafa, is this clear? Javeria, is this clear? Yes, sir. So next one is at which temperature is a concentrate solution of ये मैंने बताया था कि अगर आप सॉल्ट डालते हो ना वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। whenever you add a salt, NaCl aqueous, ठीक है, NaCl salt add करते हो या कोई भी salt add करते हो, what happens is the boiling point decreases, ठीक है, it becomes less, मतलब -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, and the sorry melting point decreases and the boiling point actually increases, for example 103 हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि वाटर के अंदर ना any impurity is added, especially salt, so the boiling freezing point, melting point decreases and the boiling point actually becomes higher। तो इसलिए बॉईल अगर वो करेगा तो वो फिर ज्यादा टेम्परेचर पे करेगा, नॉट एट 100 बट एट अ हायर टेम्परेचर, ठीक है। रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट कि आइस को मेल्ट करने के लिए ना यू ऐड सॉल्ट। सॉल्ट क्या करती है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना उसको डिक्रीज कर देती है, इट बिकम्स इजियर टू मेल्ट, ठीक है। तो पहले वो 0 पे मेल्ट हो रहा था, सॉल्ट ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, इट वुड चेंज।
और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा, वो बॉईल करना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब 103 पे जाके बॉईल करेगा वो, ठीक है। तो रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट, ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। जवेरिया, इज दिस क्लियर? यस सर। चले ठीक है, ये अब कल कंटिन्यू करते हैं। विल डू सेपरेशन, विल स्टार्ट विद सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। Okay, sir. ठीक है।